دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2020 میں ہماری دنیا کے دو دیش یعنی کہ ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ ایک خطرناک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جہاں ایک طرف ارمینیا کی سائیڈ میں امریکہ کے ساتھ ساتھ پورا ویسٹرن ورلڈ کھڑا تھا اور وہ کھلے طور پر ارمینیا کی سپورٹ میں لگاتار بیان بازی کر رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف آذربائیجان کی سائیڈ میں اس کا ایک پکا اور پرانا دوست ترکی کھڑا ہوا تھا۔ فی الحال یہ جنگ لگ بھگ 1 سے 1.5 مہینہ لگاتار چلی تھی اور آخر میں آذربائیجان نے ارمینیا کو بالکل ایک طرفہ ہرایا تھا۔ ارمینیا کی ہار اور آذربائیجان کی اس جیت سے پوری دنیا حیران تھی اور ہر کوئی یہی چیز سوچنے پر مجبور تھا کہ آخر یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا، کیونکہ ہار جیت تو لگی رہتی ہے مگر آج کے اس ٹیکنیکل دور میں بھی کسی ایک دیش کی طرف سے دوسرے دیش کو اتنے کم وقت میں پوری طریقے سے ہرا دینا یقینی طور پر حیران کر دینے والی چیز تھی۔ فی الحال جنگ تو ختم ہو گئی تھی مگر کچھ دنوں کے بعد جب دھیرے دھیرے رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ دراصل ارمینیا اور آذربائیجان کی اس جنگ میں آذربائیجان کے ہاتھ ایک ایسا ہتھیار لگ گیا تھا کہ جو دراصل اس جنگ میں ون مین آرمی ثابت ہوا تھا، ایک ایسا طاقتور اور عجیب و غریب ہتھیار کہ جس نے ارمینیا کی فوج کو تو جھکنے پر مجبور کیا ہی ساتھ ارمینیا کی فوج کے پاس جو الگ الگ طرح کے ہتھیار تھے ان کو بھی یوز لیس بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ذرا تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے اور پھر دور آتا ہے فیبروری سن 2022 کا کہ جب رشیا اور یوکرین کا وار شروع ہوتا ہے۔ رشیا اور یوکرین کی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ہر کوئی یہی اندازہ لگا رہا تھا کہ بھئی ان دونوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ رشیا بالکل اگلے کچھ دنوں کے اندر ہی پورے یوکرین پر قبضہ کر لے گا اور پھر جو چاہے گا وہ اپنے حساب سے کر سکے گا۔ حالانکہ شروع کے دنوں میں لوگوں کی امید کے مطابق یہ سب کچھ دیکھنے کو بھی ملا۔ شروعاتی دنوں میں رشیا نے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھت بنائی اور یوکرین کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد جنگ کا نقشہ اب دھیرے دھیرے بدلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ رشیا کے جس کے بارے میں یہ دعویٰ تھا کہ اگلے کچھ دنوں پر ہی یوکرین پر کنٹرول حاصل کر لے گا، وہ نہ صرف یوکرین پر کنٹرول حاصل کرنے میں ناکامیاب ثابت ہوا بلکہ ایک کے بعد ایک لگاتار خود ہی نقصان جھیلنے لگا۔ اس طرح کے یوکرین کی طرف سے دعوے کیے جانے لگے کہ آج ہم نے فلاں جگہ پر رشیا کی ٹکڑی پر حملہ کیا ہے اور اتنے فوجیوں کو مارا ہے، تو کبھی دوسری طرف سے خبر آتی کہ ہم نے وہاں پر اس کے ٹینکوں میں آگ لگا دی ہے۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اب مانو یوکرین نے رشیا کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ رشیا جو یہ خواب دیکھ کر آیا تھا کہ بہت جلد ہی وہ پورے یوکرین پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے گا، اب کنٹرول حاصل کرنا تو دور بلکہ یوکرین کا مقابلہ کر رہا ہے اور یہ جنگ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک لگاتار جاری ہے اور شاید معلوم پڑتا ہے کہ آگے بھی ایک لمبے وقت تک جاری رہے گی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یوکرین نے رشیا جیسے طاقتور دیش کو ٹکر دی کیسے، کیونکہ یوکرین تو رشیا کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چیٹی کا مقابلہ کسی ہاتھی کے ساتھ ہو۔ تو دوستو اس کیس میں بھی رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ دراصل وقت کے ساتھ یوکرین کے ہاتھ ایک ایسا طاقتور اور عجیب و غریب ہتھیار لگ گیا تھا کہ جس کا مقابلہ پرمانو بوم رکھنے والا رشیا بھی نہ کر سکا اور ایک کے بعد ایک نہ صرف بڑے بڑے نقصان جھیلتا چلا گیا بلکہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ جس طاقتور اور عجیب و غریب ہتھیار کے بلبوتے پر اس وقت یوکرین رشیا کو ٹکر دے رہا ہے، یہ دراصل وہی ہتھیار ہے کہ جس کے بلبوتے پر سن 2020 میں آذربائیجان نے ارمینیا کو ایک طرفہ ہرایا تھا۔ تو اب فوراً آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ گیا ہوگا کہ بھائی بتا بھی دو کہ آخر وہ ہتھیار ہے کون سا؟ آخر ایک ایسا ہتھیار کہ جس کی اتنی زیادہ چرچا ہو رہی ہے اور جو ابھی پچھلے 2-3 سال کے اندر ہی دنیا کی 2 بڑی جنگوں میں ایک اہم بھومکا نبھا چکا ہے، آخر اس ہتھیار کا نام کیا ہے؟ آخر وہ ہتھیار کیسا ہے، کس کا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہتھیار کچھ اور نہیں بلکہ ایک ڈرون ہے کہ جس کو بے رفتار TB2 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل وہی ڈرون ہے کہ جس کو ترکی میں بنایا گیا ہے اور یہی وہ ڈرون ہے کہ جو لوگوں کو ان سارے دعووں کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ جن دعووں میں پچھلے کئی سالوں سے لگاتار یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں نہ صرف ٹرکی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بلکہ امریکہ، اسرائیل، چائنا جیسے دیشوں کو پیچھے چھوڑ کر اب ڈرون ٹیکنالوجی کا سپر پاور بھی بننے والا ہے۔ بیرکتار 2 کی قابلیت اور طاقت کو دیکھ کر اب لوگوں کو یہ یقین ہونے لگا ہے کہ شاید ان دعووں میں کافی حد تک سچائی تھی۔ دوستو ڈرون ٹیکنالوجی کی اہمیت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زیادہ تر ایکسپرٹس کی طرف سے یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ ہماری دنیا میں فیوچر یعنی آنے والے دنوں میں جتنی بھی جنگیں لڑی جایا کریں گی ان میں ٹینک یا پھر دوسرے ہتھیاروں کی بجائے صرف اور صرف ڈرون ہی کام آیا کریں گے، ڈرون ہی کسی بھی جنگ کا فیصلہ کیا کریں گے۔ اور اگر آپ لوگ ہماری دنیا میں ہونے والی پچھلی 1-2 جنگوں کو ہی دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یقینی طور پر ان ساری چیزوں کا اثر ابھی سے ہی دکھائی دینے لگا ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ
8 से लगभग 25-30 साल पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक दौर हुआ करता था जब हमारी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही ताकतवर और असरदार ड्रोन बना सकते थे। जहां एक तरफ अमेरिका बहुत बड़े बड़े और पावरफुल ड्रोन बनाया करता था तो वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त यानी कि इजराइल छोटे और सस्ते ड्रोन बनाया करता था। इजराइल अमेरिका के उलट दुनिया के दूसरे देशों को ये ड्रोन बेचा भी करता था। बहुत सारे देशों के साथ साथ खुद हमारे देश इंडिया ने भी इजराइल से ड्रोन खरीदे हैं। मगर दोस्तों अमेरिका अपने उन बड़े और पावरफुल ड्रोन को किसी को भी नहीं बेचा करता था। उसको ये डर सताया करता था कि कहीं उसकी ये टेक्नोलॉजी दूसरे लोग यूज़ न करना सीख जाएं और ख़ुद से ही कहीं अपने देश में ड्रोन न बनाने लगें। मगर दोस्तों फिर इसी बीच अचानक से एंट्री हुई एक नए देश की और वो नया देश था चाइना ने भी इन दोनों की तरह एक के बाद एक लगातार ताकतवर ड्रोन बनाना शुरू कर दिए। मगर अमेरिका से उलट चाइना न सिर्फ अमेरिका से बहुत सस्ते ड्रोन बनाया करता था बल्कि उनको खूब बेचा भी करता था। खुद अमेरिका के दोस्त यानी कि यूरोपियन देश भी चाइना से बढ़ चढ़कर ड्रोन खरीदा करते थे। वजह साफ थी क्योंकि अमेरिका अपना ड्रोन किसी को बेच ही नहीं रहा था। फिलहाल ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर दौर आया सन 2017 का कि जब इस साल हमारी दुनिया के एक नए देश ने इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंट्री की और इस नए देश का नाम था टर्की। और दोस्तों उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि अभी एंट्री करने वाला ये टर्की देश अगले कुछ सालों के अंदर ही पिछले कई दशकों से लगातार इस फील्ड पर राज करने वाले अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे देशों को न सिर्फ पीछे छोड़ेगा बल्कि अपने आप को इस टेक्नोलॉजी का मास्टर कहलवाने लगेगा। और दुनिया के ज़्यादातर लोग इस देश को ड्रोन टेक्नोलॉजी का सुपर पावर कहने लगेंगे। हाँ दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में टर्की ने ड्रोन बनाने के मामले में अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो सन 2018 से लेकर 21 के बीच में जहां एक तरफ अमेरिका ने 143 ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे तो वहीं इजराइल ने 142 ड्रोन एक्सपोर्ट किए थे। जो तीसरा खिलाड़ी है यानी चाइना उसकी तरफ से भी 173 के करीब ड्रोन एक्सपोर्ट किए गए थे। मगर इन्हीं 3 सालों के अंदर टर्की ने इन सबको पीछे छोड़कर 190 के करीब ड्रोन एक्सपोर्ट किए हैं जो यकीनी तौर पर बड़ा नंबर है। मगर अब सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? टर्की इन सबसे इतना आगे कैसे निकल गया? टर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कैसे कर ली? तो दोस्तों एक्सपर्ट्स की तरफ से इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जाती हैं। सबसे पहली वजह तो खुद टर्की देश के राष्ट्रपति यानी कि रजब तैयब अर्दोगान हैं। दरअसल जब से रजब तैयब अर्दोगान आए हैं तब से ही उन्होंने टर्की के डिफेंस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था। उन्हीं के दौर में न सिर्फ टर्की की जो आर्मी है उसकी रैंक बढ़ी बल्कि हथियारों के मामले में भी टर्की ने बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की और आज उसका नाम टॉप देशों में आता है। इवन टर्की में सन 2023 का राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है जिसमें रजब तैयब अर्दोगान को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी चीज़ों ने परेशान कर रखा है और विपक्ष इन सब चीज़ों को बढ़ चढ़ कर उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान के पास जो प्लस पॉइंट है वो दरअसल डिफेंस को ही लेकर है। वो अक्सर अपनी रैलियों में इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि डिफेंस के मामले में उन्होंने जो टर्की को दिया है और जो टर्की के लिए किया है वो कभी और नहीं हुआ था और शायद कभी और होगा भी नहीं। वो दावा करते हैं कि कोई दौर हुआ करता था कि जब हम दूसरों से हथियार खरीदते थे मगर आज पूरी दुनिया हमसे हथियार खरीद रही है। हालांकि दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं है और रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर टर्की की जो हथियारों की इंडस्ट्री है वो दरअसल 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में तुर्की देश अपनी फौज के लिए ज़्यादातर हथियार खुद अपने देश में ही बना लेता है और उन्हीं सारे हथियारों में से एक उसका हथियार ड्रोन भी है। हालांकि दूसरे ज़्यादातर हथियारों की तरह ड्रोन को भी टर्की ने शुरू में सिर्फ अपने ही लिए इस्तेमाल किया था, मगर बाद में जब इसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया यानी दुनिया के दूसरे देशों को इसको बेचना शुरू किया तो पिछले 20-25 सालों से एक्सपोर्ट करने वाले अमेरिका, इजराइल और चाइना जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के साथ परेशानी की बात यह है कि अमेरिका के ड्रोन बेइंतहा महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जो टर्की का बैरक्तार TB2 ड्रोन है इस जैसा भी अगर अमेरिका के पास या इससे थोड़ा बहुत ताकतवर और थोड़ा बहुत पावरफुल ड्रोन है तो वो बैरक्तार TB2 के मुकाबले में बेइंतहा महंगा होगा। यही वजह है कि बहुत सारे देश के जिनको सही रेट्स में ड्रोन चाहिए होंगे वो यकीनी तौर पर बैरक्तार TB2 को चुनेंगे। इसके अलावा अमेरिका के पास जो सस्ते ड्रोन हैं भी वो दरअसल काबिलियत और ताकत के मामले में टर्की के इस बैरक्तार TB2 के मुकाबले में काफ़ी कम हैं, तो इसीलिए हर कोई इसी को प्रायोरिटी देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ जो चाइना है वो तो पूरी दुनिया में हर प्रोडक्ट को सस्ते में बनाने में काफ़ी मशहूर है। दुनिया के दूसरे प्रोडक्ट की तरह वो अपने ड्रोन को भी काफ़ी सस्ते में बना लेता है, मगर उसके साथ परेशानी की बात यह है कि उसके पास ज़्यादा खरीदार नहीं है।
क्योंकि अमेरिका का सबसे मेन और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने की वजह से यूरोपियन देश उससे हथियार खरीदते हुए झिझकते हैं और हमेशा उससे हथियार खरीदने में बचने की कोशिश करते हैं। मगर इन सारे मामलों में टर्की को एडवांटेज हासिल है, क्योंकि उसका ड्रोन सस्ता तो होता ही है, साथ ही साथ उसके पास इन सारे ही देशों के मुकाबले में ज्यादा खरीदार हैं। क्योंकि एक तरफ नेटो का हिस्सा होने की वजह से सारे यूरोपियन देश बेझिझक उससे हथियार खरीद लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया में होने की वजह से वो बहुत सारी एशियन कंट्रीज को भी अपने हथियार बेच लेता है। साथ ही साथ टर्की क्योंकि एक मुस्लिम देश है, तो बहुत सारे मुस्लिम देश उससे क्लोज रहते हैं और उससे हथियार भी खरीदते हैं। इजराइल के साथ भी कुछ कुछ अमेरिका जैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि खरीदार तो उसके पास भी टर्की की तरह बहुत ज़्यादा हैं। वजह यह है क्योंकि एक तरफ वो एशिया में मौजूद है, तो बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ उससे हथियार खरीदती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब तो इजराइल को अपने भाई की तरह मानती हैं, तो इसीलिए वो दुनिया के हर क्षेत्र में लगभग अपने हथियार बेच ही लेता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि टर्की के मुकाबले में उसके यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए उसके यहाँ का लेबर भी काफ़ी महंगा है। उसको कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना होता है या कोई भी वेपन तैयार करना होता है तो उसको लेबर पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो इसके ओवरऑल प्रोडक्ट की कीमत को बेइंतहा बढ़ा देता है। इसीलिए ड्रोन्स के साथ साथ इजराइल के लगभग सारे ही वेपन्स काफ़ी महंगे माने जाते हैं। दोस्तों, जब से ये बात क्लियर हुई है कि फ्यूचर में लड़ी जाने वाली जंगों में सबसे मेन और सबसे अहम किरदार ड्रोन्स अदा किया करेंगे, तब से दुनिया के ज़्यादातर देश ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मगर कामयाबी सिर्फ गिने चुने देशों को मिली है और उन्हीं चंद देशों में से एक देश का नाम टर्की भी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इस वक्त टॉप पर पहुंच जाने वाले टर्की का दावा है कि इस वक्त उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया के लगभग 24 देश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टर्की तो यहाँ तक दावा करता है कि उसकी एयर स्पेस कंपनीज इससे भी ज़्यादा ताकतवर और इससे भी ज़्यादा एडवांस ड्रोन्स पर काम कर रही हैं और आने वाले दिनों में हम दुनिया के सामने ऐसे ड्रोन्स लेकर आएंगे कि जो हमारे पुराने सभी ड्रोन से न सिर्फ ज़्यादा ताकतवर होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा एडवांस भी होंगे। फिलहाल अगर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर मैं मिडिल ईस्ट के बारे में ही बात कर लूँ तो टर्की और इजराइल के अलावा अब तीसरा एक और देश है कि जिसका नाम पिछले कई महीनों से लगातार ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है और वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान है। हाँ दोस्तों, वैसे तो ये बात क्लियर थी कि ईरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और ड्रोन्स लगातार बना रहा है, मगर पिछले साल अचानक से ये उस वक्त एकदम से ज़्यादा चर्चाओं में आ गया था कि जब यूक्रेन के अंदर इसके ड्रोन्स को लेकर कुछ सबूत मिले थे और ये पता चला था कि दरअसल रशिया और यूक्रेन की वॉर में जहाँ एक तरफ यूक्रेन टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया ने भी यूक्रेन की देखा देखी अब खुफिया तौर पर ईरान से ड्रोन्स खरीदकर अब ईरान के ड्रोन का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये सारे ईरानियन ड्रोन्स यूक्रेन को बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि मिडिल ईस्ट के एरिया में इजराइल और टर्की के बाद अब ईरान भी ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुका है। न सिर्फ एडवांस हो चुका है बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा बना रहा है और खुफिया तौर पर बेच भी रहा है, मगर वो अमेरिका के सैंक्शंस यानी कि पाबंदियों की वजह से कभी खुलकर इस चीज़ को जाहिर नहीं करता है। फिलहाल पूरा क्या सच है ये तो हम में से भी कोई नहीं जानता है। बस हाँ, ये बात क्लियर है कि ईरान ड्रोन्स बना रहा है और रशिया में उसके ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।